Hi guys, welcome to this particular lecture. So we'll discuss question number 11 from the 2024 MME paper. So let's see. The first part goes around with this. Find the third degree Taylor formula for log of 1 plus x at 0. So at 0 you have to find third degree Taylor formula. And इसी formula को use करके you have to approximate and find the value of 1.1. That is the first thing that you have to do. And then you have to estimate the upper bound to the error. Error R3x आपको निकालना है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, इसका अपर बाउंड निकालना है, ठीक है. सो लेट्स सी हाउ विल वी गो अबाउट दैट. सो सबसे पहले अगर मैं टेलर्स फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिकॉज मैं जीरो के अराउंड अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ, तो एफ ऑफ एक्स विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, एफ प्राइम एक्स times x minus 0, so that will just be x divided by 0 factorial, plus f double prime, I won't use x here, I'll use 0 here, then f double prime 0, and then x square divided by 2 factorial, and because हमें third degree तक करना है, तो f triple prime 0 times x cube divided by 3 factorial, right? So हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, log of 1 plus x. Log of 1 plus x. Why is this? So if you do f prime x, that will be 1 upon 1 plus x, right? If you do second derivative, that will be minus 1 plus x raised to the power minus 1 comes in front, divided by 1 plus x raised to the power 2. And then f triple prime x will be, this power goes up, minus 2 comes in front, so that gives me 2 divided by 1 plus x cube. Right? This is what you will get. तो f prime 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. f double prime 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1. एंड f triple prime 0 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2. Right? So we'll directly substitute these values here in the function. So ये जो log of 1 plus x है, ये approximately around 0 कितना हो जाएगा, f of 0. What is f of 0? log 1 कितना होता है, log 1 will be log 1 will be 0. So 0 plus f prime 0 is 1 times x plus f double prime 0 is -1 times x square divided by 2 factorial plus 2 x cube divided by 3 factorial, right? So this is what we will do here. All right, so now if we'll move on, and then simply हमारा जो फंक्शन है log of 1 plus x को क्या हो जाएगा, x minus x square divided by 2 factorial is 2, और यहाँ पे plus x cube divided by 3 factorial is 6. 6 को 2 से डिवाइड करें, फैक्टर हो रहा है, तो नीचे हमारे पास 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे x cube divided by 3 हो जाएगा, right? So this is my approximate value, third degree Taylor's approximation for this particular function around x is equals to 0. ठीक है, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन हो गया. उसके बाद हमें log of 1.1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1.1 में जो x की वैल्यू है, we will be using that as 0.1, right? Because it is 1 plus x, which is 1 plus 0.1, right? So this is what we have. So ये approximately किसके बराबर हो जाएगा, x value is 0.1 minus 0.1 whole squared divided by 2 plus 0.1 whole cube divided by 3, right? So ये कितना हो जाएगा, approximately 0.1 minus ये कितना है, 0.01 divided by 2 plus ये कितना है, 0.001 divided by 3, right? तो ये हो जाएगा approximately 0.1 minus 0.005, और ये कितना हो जाएगा,
this is approximately 0.00033, something like that, right? तो इसको जब आप approximately निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? This will be 0.1 minus 0.005 plus 0.00033. So that gives me 0.09533. So approximate value of log 1.1 is this particular number. Okay. So ये हमारी approximate value हो गई. अब इसके बाद हमें पहली बात तो R3x निकालो और फिर R3x वैल्यू पे अपर बाउंड बताना है. ठीक है. तो जो R3 की वैल्यू होगी, प्लीज नोट दैट यहाँ पे आपको R3x निकालने को बोला गया है, राइट? तो वो किसके बराबर होगा? F ट्रिपल प्राइम C x क्यूब divided by 3 factorial, where for C is between 0 and x, right? C कोई भी नंबर है बिटवीन 0 एंड x, ये आपकी R3 की वैल्यू हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे बिकॉज मुझे अपर बाउंड निकालना है, तो यहाँ पे देखो हमें जो वैल्यू x की कंसिडर करी हुई है वो 0.1 है, राइट? सो वी कैन यूज दिस टू फाइंड एन अपर बाउंड ऑन दिस. सो ये जो R3 0.1 है, ये किसके बराबर है? F ट्रिपल प्राइम C. x की वैल्यू 0.1 होल क्यूब करोगे आप और फिर इधर 3 फैक्टोरियल लिखोगे फॉर C बिलोंगिंग टू 0 to C इज जस्ट सम नंबर 0 से लेके 0.1 के बीच में. ठीक है. तो F ट्रिपल प्राइम कितना था हमारे पास? F ट्रिपल प्राइम वॉज दिस. F ट्रिपल प्राइम वॉज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 3. तो अगर C रखते हो तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस C पावर 3 एंड इधर है 0.1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, राइट? ये है. अब मुझे इसकी वैल्यू पे अपर बाउंड निकालना है. तो अपर बाउंड निकालने का मतलब क्या है कि आप मैक्स पॉसिबल वैल्यू बता दो ये एरर की कितनी हो सकती है. तो मैं अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 0.001 पावर क्यूब खोल दिया, नीचे हो जाएगा 3 और इधर है ये है 1 प्लस C रेज टू द पावर 3. अब जो C की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है अगर आप वो पुट करोगे तो ये जो रिमाइंडर है वो मैक्स पॉसिबल वैल्यू लेगा. और C की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ C हियर इज 0, राइट? सो R3 0.1 will be less than equal to 0.001 divided by 3, and then if you put 0 here this number will be 1. So ये जो number है less than equal to 0.00033, that is the upper bound on this. Upper bound is this. एंड प्लीज नोट ये R3x लिखा हुआ है तो हम लोग R3 उसी अकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है. इज 0.00033. ऑलराइट. सो this is how you are supposed to do this particular part. This is part number A. Question number 11, part number A. Let's do part number B now. So B part is show that the function is this x times mod of x. You have to show that this particular function has an inflection point at 0, 0, but the double derivative at 0 does not exist. Double derivative of the function does not exist, and then you also have to draw the graph. Okay, so let's see. So x times ये फंक्शन है. ठीक है. क्या शो करना है? एट 0 इन्फ्लेक्शन पॉइंट
inflection point. Inflection point at 0, ये शो करना है एक तो चीज, और एक f डबल प्राइम 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और हमें फंक्शन का ग्राफ भी बनाना है। ये 3 चीजें करनी है। ठीक है, चलो। पहले तो फंक्शन है क्या, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेट्स से इक्वल टू भी 0 है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, राइट। एंड x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो एक नेगेटिव आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ सिंपली क्या हो जाएगा, पहले ग्राफ ही बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, पॉजिटिव साइड में इट इज समथिंग लाइक दिस, एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा ऑन दी दिस साइड विल बी लाइक दिस। सो दिस फंक्शन लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ है, तो हमने ग्राफ भी बना लिया। अब पहली चीज जो है, हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट शो करना है। तो कोई भी फंक्शन इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन अपना कर्वेचर चेंज कर रहा हो। कर्वेचर चेंज हो सकता है वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स जा रहा हो, या फिर कॉन्वेक्स से कॉनकेव जा रहा हो, या कॉनकेव से कॉन्वेक्स जा रहा हो, राइट। तो अगर आप इस पॉइंट 0 पे देखोगे तो फंक्शन अभी ये पूरे सिचुएशन में कॉनकेव है, एंड देन इट सडनली बिकम्स कॉन्वेक्स। तो ये आप अपने डबल डेरिवेटिव के साइन को चेक करके देख सकते हो, राइट। तो फंक्शन का एफ प्राइम एक्स अगर आप निकालते हो तो वो क्या होगा यहाँ पे, 2x whenever x is greater than equal to 0, right, and this is minus 2x whenever x is less than 0, right। ये आपका f of x है, ये f of ये f प्राइम x है, राइट। तो और f डबल प्राइम x की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो हम लोग 0 पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं x की वैल्यू। ओके, सो बिफोर डूइंग डबल डेरिवेटिव लेट्स जस्ट सी दिस। देखो, आप क्या शो करना चाहते हो कि आपका जो फंक्शन है वो 0 पे डबल डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। तो अगर जैसे मान लो हमें ये शो करना होता कि ये मेरा फंक्शन है और 0 पे एफ प्राइम एक्स डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या करते, हम देखते कि एफ एक्स पे कहीं ना कहीं शार्प टर्न हो रहा होता, मान लो समथिंग लाइक दिस। तो अगर आपको ये शो करना है कि डबल डेरिवेटिव पॉइंट 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है ना फंक्शन का, ये 0 पे कहीं ना कहीं शार्प टर्न ले रहा होगा। तो अगर आप एफ प्राइम एक्स को देखते हो, एफ प्राइम एक्स को देखते हो, तो ये है 2x, सो इट्स लाइक दिस, एंड माइनस 2x लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे 0 पे सडनली क्या हो रहा है, शार्प टर्न हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे द डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड बिकॉज देर इज अ किंक। सो एक लॉजिक ये हो सकता है, या फिर अगर आप देखो कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने की कोशिश करो वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो दैट विल बी 2, and whenever x is less than 0 it is minus 2, right। तो लेफ्ट हैंड साइड पे it is minus 2, राइट हैंड साइड पे it is plus 2, and because of that sharp turn 0 पे ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, so since there is a kink at f prime 0, f prime 0 पे there is a kink, so f double prime 0 is not defined। ठीक है, और एक लॉजिक आप ये भी दे सकते हो कि जब लेफ्ट हैंड साइड से आते हो तो डेरिवेटिव की वैल्यू -2 है, राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2 है। दैट इज ऑल्सो शोइंग दैट द फंक्शन इज नॉट, डबल डेरिवेटिव एट 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो ये तो डबल डेरिवेटिव के हिसाब से हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो हमें प्रूव करना था वो था कि फंक्शन का 0 पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट सिंपली कैसे बताते हो, आप देखते हो कि कर्वेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। तो पहले एक्स की वैल्यू लेस देन 0 पे नेगेटिव है डबल डेरिवेटिव का साइन, दैट मीन्स द फंक्शन इज कॉनकेव। उसके बाद फंक्शन इज कॉन्वेक्स। तो 0 पे तो लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ एक्स it is -2, right side of x it is +2,
So actually the curvature is changing from concave to convex, right? So because of that, because the curvature is changing from concave to convex, that is why at 0 we have an inflection point. Okay. So and that this we can see from the diagram as well. This is the diagram of f prime x, and this is the diagram of f of x. All right. Okay. All right. So this concludes question number 11, A and B part. All right.